Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Sanam. How are you doing? Alhamdulillah, I'm good. How are Thank you, you. Miss Hina? I'm good. Thank you so much. Thank you for joining us. Cognitive Talk के इस पॉडकास्ट सीरीज में हम आपसे डेफिनेटली विमेन मंथ की रेफरेंस से आपकी स्ट्रेंथ्स आपके बारे में योर वर्क योर रेजिलियंस एंड जहाँ तक मुझे पता है आपने बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में काम किया तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे ताकि हम कुछ और लोगों को भी इंस्पायर कर सकें सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर सबसे पहला क्वेश्चन हाउ डू यू डिफाइन सनम Thank you so much, Miss Hina. First of all, thank you for inviting me. और इससे पहले कि मुश्किल क्वेश्चन ये है कि डिफाइनिंग सनम which is very difficult. yeah All right. So first of all, I would like to start my discussion with the name of Allah. Uh, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Rabbi Shahri bi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hina, I always start my talk with this beautiful verse. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, which is actually, defines every human, the power and the value of human, and particularly a woman, that we are the best creation of the best creator. no doubt Actually, it defines me as well, which gives me the courage, which gives me hope, and which gives me power to, face everything. Yes, if I am the best creation of Allah, then obviously Allah has given me all those skills, and the courage that I can face the hurdles, the barriers, the difficulties, and everything which comes to my way, literally. wonderful So, wonderful in shortest, if I say that I am hopeful and I'm determined, I'm eager to learn, and the most important thing, I really want to contribute or want to pay back to the society. So this is, wonderful Sanam. Yes, Wonderful, wonderful. What a beautiful definition of Sanam. yes. Sanam is empowered, Sanam is motivated, dedicated to Alhamdulillah. give back to the Alhamdulillah. society. And Yes. Alhamdulillah, you are, passionate to be the best creature of Allah. No Yes, doubt. Alhamdulillah. 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 Yes. Thank you so much for these beautiful words about you, and I really appreciate because ये सबसे मुश्किल काम होता है कि when you talk about yourself and when you work on yourself तो आपको इतनी सारी चीजें निकल आती हैं कि आप कौन हैं आपके अंदर क्या है और Actually, आप once you know who you are, then you get the answer of all other things. This is what I एग्जैक्टली believe. एंड देन आपको अपना जो जिंदगी का वाय है ना वो क्लियर हो जाता है फिर आप बड़े Yes. रिलैक्स हो जाते हैं कि ठीक है भाई अब तो मेरा काम ही यही है एक रास्ता वही मिल कहते गया हैं ना कि जी when your why is clear, then your how will be stronger. एक बार why स्ट्रॉन्गर पता चल जाए तो फिर why, how और what सारे इजी हो जाते हैं. फिर हम रास्ते बना लेंगे राइट और लेफ्ट रास्ते बना लेंगे. यस. बट रास्ते वो why क्रिएट करने ढूंढना बहुत जरूरी है और बहुत मुश्किल भी है. इट्स नॉट इजी. Wonderful, wonderful. Yeah, exactly. And I appreciate your passion and your work in the society, in the communities, especially youth पे जो आप काम कर रही हैं. यस. Like, I have been to, to your organization. तो मैं आपकी organization की ownership लेती हूँ. और उसकी थैंक ownership यू. लेने की एक बहुत बड़ी वजह ये है, यो वेलकम. एक वजह ये है कि, आप youth पे काम करती हैं. मुझे ये लगता है कि अगर हम जब जवान थे अब तो चले अब जिस स्टेज पे पहुंच गए लेकिन जब हम लाइक 15 16 17 18 20 साल की उम्र में जब हम थे तो हमने जो चीजें सुनी देखी समझी वो लाइक लॉन्ग लाइफ आपके साथ चलती रहती है सो बिल्कुल. मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में ये भी बताएं कि व्हाट इज द एक्स फैक्टर व्हाट इज द वन बेस्ट थिंग व्हिच कीप्स सनम गोइंग ऑन आई थिंक सिंस बिगिनिंग, और जो एक समझ लीजिए कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग रीजन of Yes You Can Foundation is the passion to learn new things and to make them learn others. खुद तो सीखना है, वंडरफुल दूसरों को भी सिखाना है. So this is, खुद सीखना और the बांटना है most important. Yes.
तो माशाल्लाह। उससे ये होता है कि वो गिव एंड टेक वाला सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि जब आप देना शुरू कर देते हैं तो फिर एक जुस्तजू बढ़ती है कि कुछ और नया सीखें और नया सीखें, और फिर ताकि कुछ और नया दे सके हम। तो दे ये सके वाला और है। देने से बढ़ता यस, है। बढ़ता है, लाइक एग्जैक्टली। आप एक बच्चे को एक चीज सिखाते हैं और वो सोसाइटी में जाते हैं, वो अपने घर में जरूरी नहीं है कि वो फॉर्मल लर्निंग दे लोगों को, बट उसके एक्सपीरियंसेस से, लाइक उसके एथिक्स, उसके लाइक एग्जैक्टली, टोटल जितना वो उसका एग्जैक्टली। सारा यस, पर्सनालिटी और वो सब चीजें देख के लोग सीख यस। रहे होते हैं। अभी जैसे हमारा कल एक सेशन था, में से ना पर्सनल इफेक्टिवनेस पे कल ही था, एक कि हमारा पाकिस्तान करियर फेयर में मैंने उसमें मेंशन भी किया था। तो उसमें वही चीजें था कि अब आजकल के दौर में इंफॉर्मेशन का तो मतलब शॉर्टेज है ही नहीं ना। मतलब इंफॉर्मेशन तो भरी पड़ी है, फिंगर टिप्स पे बिल्कुल। है हमारे। नाउ द डिफिकल्ट पार्ट इज कि उसमें से हमें फिल्टर लगाना है कि कौन सा इंफॉर्मेशन हमें लेना है और कौन सा नहीं। तो अब इंडीड। चैलेंज चेंज हो गया है हमारा। तो ये बहुत अहम है कि हमें एक्चुअली जो हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन है उसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि जी ये मेरे काम का है भी या नहीं है, या मैं इस पे अपना टाइम और एनर्जी गलत वेस्ट कर रही। सो दिस इज वेरी गलत है। इंपॉर्टेंट, अगेन वी शुड लर्न कि जी ये मेरे काम की चीज है भी या नहीं है। यस। या बिल्कुल। द अदर डे आई वाज डिस्कसिंग विद समवन, यहाँ पे एम्बर एक मेरी कुलीग है, और एम्बर के साथ मैं मीटिंग में ये बात डिस्कस कर रही थी कि यू नो जो इंफॉर्मेशन और जो नॉलेज हमारे पास है, लाइक यस, हम उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पे कितना, लाइक कुछ चीजें तो इम्प्लीमेंटेबल नहीं होती हैं, बस वो जस्ट आपको लाइक बूस्ट देने के लिए, लर्निंग के लिए, मोटिवेशन के लिए होती है। बट जब सॉलिड एंड टैंजिबल पॉइंट्स हमारे पास आ जाते हैं, तो मैं उसको पूछ रही थी कि अमर हम कितना जो है ना इम्प्लीमेंट करते हैं। सो मैं उसको ये बता रही थी कि मैं कम चीज लेती हूँ, उसको प्रोसेस ज्यादा करती हूँ। सो इट इज द बेस्ट थिंग कि जब आपके पास कोई चीज आ जाए उसको प्रोसेस करें। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मैंने यस। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था जिससे मैं सर्टिफाई हुई थी। उसको मैंने इतना मल्टीप्लाई किया, इतना मल्टीप्लाई किया कि मैंने पूरी दुनिया में उसी प्रोग्राम को चलाया। लोगों को लगता था कि सर्टिफिकेशंस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। सो आई ऑलवेज थिंक कि आप बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेशंस करने से बेहतर है एक सर्टिफिकेशन करो और उसका इम्पैक्ट पहले ले आओ, फिर आपको लगे कि एडवांस करना है, आप कुछ और इससे ज्यादा अगली चीज सीखनी है, तो देन यू कैन डेफिनेटली पहले जिस सीढ़ी पे खड़े हो उस पे तो पाँव जमा लो ना। तो दिस इज वन थिंग आई आई एम थिंक श्योर के। या बिल्कुल, मैं से ना आई थिंक कि इट शुड बी इनसाइड आउट अप्रोच ना। हमारे पास जो अब अप्रोच है वो चेंज होना चाहिए कि जी सिर्फ सर्टिफिकेशन लेने से या हमारे जो सेशंस हैं, ट्रेनिंग्स हैं, वो कुछ दिन तो काम करेंगे, हमें मोटिवेट भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते वर्क। दे विल वर्क, बट आफ्टर सम टाइम अगेन दे विल बी स्टैंडिंग ऑन द सेम पॉइंट। तो उसके लिए क्या है कि वो अप्रोच ये होनी चाहिए कि जी अंदर से हमारे अंदर वो एक्सेप्टेंस कितनी आ रही है, इम्प्लीमेंटेशन कितनी आ रही, तभी वो हमारा जो एब्जॉर्प्शन आएगा और फिर वो उसका हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज आ जाता है। यस। एग्जैक्टली। एक चीज डेफिनेटली आपने ग्लोबली भी काम किया है, लोकली इन पाकिस्तान करंटली आर वर्किंग अलॉट। सो मुझे एक थोड़ा सा बताएं, बिकॉज दिस इज अ पॉडकास्ट रिलेटेड टू वेमेन मंथ, और मैं चाहती हूँ कि बच्चियां, औरतें आपको देखें, जिनके अंदर पोटेंशियल है, टैलेंट है, और वो सबके अंदर ही तकरीबन होता है, वो जस्ट कोई ना कोई स्पार्क उनको मिलना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी बात उनको मिलनी चाहिए, यस। और उनको ये पता होना चाहिए कि अम, हर औरत, हर लड़की उनकी तरह एक आम लड़की है। अम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके साथ आपके कलीग्स, आपके लाइक वर्क प्लेसेस पे, आपकी सोसाइटी में, कम्युनिटी में, आपके इवन घर में, स्टार्टिंग फ्रॉम द होम, आपने क्या ऐसे ट्रेट्स देखे जो लाइक स्ट्रॉन्गर वुमेन के अंदर होते हैं, आपको लगा कि हर औरत के अंदर ये कुछ ट्रेट्स मैंने देखे हैं जो मजबूत औरत है, जो मतलब माशरे में जिसने अपना नाम बनाया है, अपने काम के जरिए अपना नाम बनाया है, तो वो क्या ट्रेट्स आपने देखे हैं? अच्छा, मैं से ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग, अब मैं एक बात बताऊं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ यू डोंट फाइंड एनी मोटिवेशन, कंसर्न, करेज, सपोर्ट, रोल मॉडल अराउंड यू, और वो भी उस उम्र में जब जो एक ग्रो करने की एज है या आगे बढ़ने की है, what will you do at that time if you don't find anything among all those, you know the required thing? What will you do, or मैं what अगर any woman, any girl will do?
या एग्जैक्टली डेफिनेटली मैं अगर मुझे कोई नहीं मिल रहा, लाइक लेट्स सपोज द सिचुएशन इज कि कोई भी नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो मैं अपने अंदर से फाइंड आउट करना शुरू कर दूंगी. So this is what happened with me at my early age. It's little, I belong to a humble background जहाँ पे I did not find any of these factor. और उस वक्त वो बड़ा मुश्किल था. और उस वक्त वही जो एक हम, क्योंकि दो चीजें एनी हाउ, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी फैमिली हो, दो चीजें हमेशा जरूर डिस्कशन में आती हैं. एक रिलीजियस और एक पॉलिटिकल, है ना. उसका जरूर नो हाउ होता है एनी हाउ सब. तो इन्फ्लुएंस है जब ना. सराउंडिंग में एटलीस्ट कोई आपके फैमिली में, आपके सोसाइटी में, आपकी इवन कम्युनिटी में भी कोई ऐसा रोल मॉडल ना हो आपके सामने, कोई इंस्पिरेशन ना हो, कोई मोटिवेशन ना हो, कोई कंसर्न ना हो, कोई करेज ना हो, कोई सपोर्ट ना हो, तो फिर आप वो जो बातें सुनते हैं ना अपने बड़ों से, आसपास में लोगों से, तो वो फिर कहीं ना कहीं आपके जो है वो सेफ होती है माइंड में. और फिर वो कहीं ना कहीं स्पार्क भी देती है. तो उस वक्त मेरे पास दो चीजें थी, इनफैक्ट तीन. पहली चीज जो थी, एक जो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो वो मतलब हजरत जैनब का बहुत जिक्र है. तो शी वॉज द लेडी, और शी इज हु एक्चुअली इंस्पायर्ड मी, कि ऑल तो मेरी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है कि जिससे मैं इंस्पिरेशन ले सकूं बीइंग अ वुमन, ना ही मुझे कोई सपोर्ट किया जा रहा है, बट यस स्टिल दे ऑल यू नो प्रेज हर, और उनको बात करते हैं. शी इज अ लेडी ना, राइट. वो है तो खातून. फिर दूसरा जो पॉलिटिकल एक आप लोगों का बहुत इंस्पिरेशन होता है, वो एट दैट टाइम पर्टिकुलरली, वो बेनजीर भुट्टो का, अगर हम कहेंगे बीइंग द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, तो उस उनका बहुत बात किया जाता था. ऑल दो दे डोंट सपोर्ट देयर वुमेन, बट वो उनको पसंद जरूर करते हैं, उनका करेज की बहुत बात करते हैं, उनकी उनके एग्जाम्पल्स यूज करते हैं. तो कहीं ना कहीं वो चीजें थी, दो चीजें. और फिर जो लास्ट में जो सबसे इंसान कहते हैं ना, कि अगर उनके पास कोई भी रास्ता ना हो, तो इंसान के अपने अंदर रास्ता होता है. अगर आप उसको खुद देख लें, सुन लें, समझ लें, तो फिर वो सेल्फ टॉक आ जाता है. तो वो खुदा ने हर इंसान के अंदर, क्योंकि इंसान एक बहुत ही खूबसूरत मखलूक है, खुदा के अशरफुल मखलूकात में से है, तो खुदा ने इंसान के अंदर वो तमाम तर सलाहियतें रख दी हैं. तो बस फिर इंसान जब खुद को सुन लेता है, तो फिर समझ आता है कि अच्छा जी, वंस हम ठान लेते हैं, करेज करेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपने हिम्मत कर ली, तो फिर रास्ता बनता है, एक तो इंस्पिरेशन आ जाती है, और फिर नंबर आपके वन अंदर इज द करेज. स्ट्रेंथ भी है. Yes. एंड उससे भी अगर नंबर अभी वन अगर हम कहें, तो वो सेल्फ अवेयरनेस है. यानी कि बीइंग अ सेल्फ ह्यूमन अवेयरनेस. एंड बीइंग अ वुमन, यू शुड नो योर वैल्यू. यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी क्रिएशन ऑफ अल्लाह. यू आर अशरफुल मखलूकात, एंड यू आर प्रीशियस एंड वैल्यूएबल क्रिएशन ऑफ अल्लाह. अल्लाह के नजदीक आपकी क्या वैल्यू है, प्लस अल्लाह ने आपको इतनी इंपॉर्टेंस दी है, ह्यूमन बीइंग, तो वो कोई मामूली चीज नहीं हो सकती है. तो दैट वाज द थिंग. यस. ओके, दैट वाज द थिंग. एंड आप कह रही है कि सेल्फ अवेयरनेस होती है उन लोगों में जो बहुत मजबूत यस. खवातीन होती हैं. जैसे यस. आपने बेनजीर का जिक्र किया, यस. हजरत जैनब का जिक्र किया. तो यस. आपको लगता है कि सेल्फ अवेयरनेस होती है, इज वेरी करेज इंपॉर्टेंट. होता यस. है, करेज होता है, एंड करेज. व्हाट एल्स, लाइक व्हाट टू और थ्री ट्रेड्स मोर, जो आपकी सराउंडिंग में जो मजबूत औरतें हैं, उनके अंदर क्या चीजें आपने देखी हैं? आपने देखा होगा गाँव में भी कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो पढ़ी लिखी यस. नहीं होती हैं, बट बहुत मजबूत होती हैं. मजबूत होती हैं. यस. हस्बैंड की डेथ हुई होती है, बेवा हो जाता है, बेवा हो जाती हैं, तो वो बेचारी सारी जिंदगी चलाती हैं, बट वो बड़ी मजबूत होती हैं, औलाद की बड़ी अच्छी तरबियत करती हैं. इट्स ओके यस. बेबी. Yes, cute. Yeah, यस. kids do when mom is on recording. Yeah, kids do. तो So yeah, बिल्कुल. let her do her work. और जो बच्चे को अपना काम करने दे, आप अपना काम करें. Okay, yes, come on. यस. तो मेरे ख्याल से सेल्फ अवेयरनेस है, फिर अगर हम कहें तो उसमें करेज है, एंड थर्डली इफ आई से इट्स ऑल अबाउट कि आपका डिटर्मिनेशन कितना है. मतलब आपने जो चीज स्टार्ट लिया है, या यू फील कि जी मुझे ये करना है, तो उसमें आप परसिस्टेंट कितने हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इवन इफ यू डोंट Oh. फाइंड एनी फीडबैक या एनी सपोर्ट, बट स्टिल यू कीप ऑन डूइंग. तो दैट इज Hmm. वेरी इंपॉर्टेंट कि परसिस्टेंसी कितनी है आप. यानी कि बिल्कुल अगर आपको एग्जैक्टली. मटेरियलिस्टिक फॉर्म में या फिर किसी और उसमें अगर कोई बेनिफिट या कोई सपोर्ट नहीं भी मिलता, बट स्टिल इफ यू कीप ऑन डूइंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि डिसहार्ट नहीं होना है, जल्दी हिम्मत नहीं हारनी. तो ये वाली चीज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली. एग्जैक्टली. यस. और ये
परसुएसिवनेस अगर नहीं होती ना इंसान के अंदर, ये लाइक परसवेरेंस की बात कर ले, परसिस्टेंस जो होती है, ये अगर नहीं है ना तो कुछ भी नहीं हो पाता। मैं किसी को Yes, बता रही थी कि थोड़ा 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 रोज करो, बजाय इसके कि एक दिन बहुत ज्यादा करो और फिर अगले दिन या अगले साल तक कुछ भी ना करो। सो exactly. हम लड़कियों को स्पेशली मैं ये कहूंगी कि थोड़ा 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 एवरी डे करो। बिल्कुल. And it's okay. You have families like सनम का भी बच्चा है, तो I feel humble कि we are mothers and still Yes. this is Even if we settle down, everything is still, they create problem, which we no, they should be, don't create problem. सनम, ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि वो अपना काम करते हैं, और अभी बच्चों का क्या yes. काम है। उनको कुछ चीजें डिफरेंट लगेंगी, वो उसको दिस इज द क्यूरियोसिटी। वो बच्चे अगर उनको लगता है कि माँ कुछ कर रही है, हमें भी झांक के देखना चाहिए, तो उन्हें देखना चाहिए, डोंट स्टॉप देम, राइट। Yes. Yes. अम, और मैंने ये सीखा था, देखें, हम वेमेन को स्ट्रांग मेंटोर्स चाहिए, जिन जो उनकी बहुत वर्थ होती है। मेरे एक बहुत अच्छे मेंटोर है, डॉक्टर आबिद। उन्होंने एक दफा मेरे बच्चे, इसी तरह हम ट्रेनिंग सेशन पे डिस्कशन कर रहे थे, हम कंसल्टेंट्स बैठे हुए थे, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पे बात चल रही थी। तो वो कहते हैं कि मेरे बच्चे ना बैक एंड पे, मैं दोनों बच्चों को साथ लेके जाती, तो मुझे एनकरेज करते थे कि दिस इज नॉट अ ट्रेनिंग सेशन, हम बैक एंड पे काम करते हैं, तुम ले आओ, वो खेल रहे हो। अच्छा, बच्चे मेरे बड़े शोर कर रहे थे, खेल रहे थे आपस में। तो आई मैं कॉन्शियसली बार बार उनकी तरफ जा रही थी, एंड तो उन्होंने मुझे एक बिठा दिया, बैठो, सिट डाउन। कहते हैं अपना काम करो और उनका अपना काम करने दो। कहते हैं उनको, उनका तुम्हारे काम पे कोई फोकस नहीं है, तुम्हारा उन पे क्यों फोकस Yes. है। So this is Yes. what we needed to do. Yes. I really Exactly. appreciate. Exactly. Thank you so much for your kindness. Jim. और you're welcome. और I know this is 10:31 and PM in Pakistan. It's quite late. Family है and everything. तो आपने Yes. फिर भी मेरे लिए टाइम निकाला. This is very much important for That's me. okay. That's it. I really You're appreciate it. always welcome. और हमें देखें, हमें ये चीजें सिखानी पड़ेंगी आने वाली बच्चियों को, कि इससे हेजिटेंट ना हो कि आपके बच्चे हैं, इससे हेजिटेंट ना हो कि आपकी फैमिली है। आप सारी चीजों को साथ लेके चलें। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। लेकिन डोंट फील ashamed ऑफ अगर आपका कहीं बच्चा को ऐसी बात, क्योंकि ऑनलाइन पूरी दुनिया इस वक्त ऑनलाइन चल रही है। अक्सर हम लोगों के साथ ये होता है, ट्रेनिंग्स चल रही होती है तो पीछे बच्चे लोगों के खेल रहे होते हैं, ये वो। तो वो मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि हम वेमेन, अगर अगर इन सारी चीजों के साथ अगर हम काम कर रहे हैं, हम टाइम दे रहे हैं, Exactly. मोर देन वेलकम। अब मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा सनम, के व्हाट इज योर वन बेस्ट लास्ट मैसेज फॉर women ऑल अराउंड द वर्ल्ड, या जो गर्ल्स आपको लगता है कि they they can learn and they can inspire themselves, आपसे So what सीखें और I अपने आप को खुद feel, इंस्पायर करें अपनी परफॉर्मेंस से। वैसे ना, जैसे हम बिल्कुल अभी बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन से हम बात करें खवातीन के हवाले से, और बहैसियत इंसान और बहैसियत खातून पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, तो मतलब बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमन, आई प्राउड टू बी अ वुमन, मतलब द फर्स्ट थिंग अगेन. और if we see, if we know ourselves, if we know our value being a woman, then definitely we will be proud of women. क्योंकि जब हम रेफरेंस लेते हैं, पर्टिकुलरली बीइंग अ वुमन, बीइंग अ अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम वुमन, तो हम जब अगर मिसाल एक एग्जांपल दें रसूल की हदीस का भी, तो लाइक वो फरमाते हैं कि जी जो बेटियां हैं, जो खवातीन हैं, वो अल्लाह की रहमत है, सादत है और खैर की अलामत है। यानी कि हमारी जो वैल्यू है अल्लाह की नजर में और हमारे मजहब में, वो बहुत खास है. आफ्टरवर्ड आई मस्ट से कि वंस यू नो योर वैल्यू, then think of yourself as a blessing. You are very important. You know, you are given special value and love by the Creator. So just value yourself, माशाल्लाह। know yourself, love yourself, respect yourself. Being human, being woman, you are given all those qualities and skills which are required to create miracles. So every individual is, unique and has all those qualities like others. So I must say, you are you. That's your power. Use your power to create miracles, and then you can do it. So this is my message Wonderful. to all the women and the girls around the world, I must say. Wonderful. Yes. Thank you so much, Sanam. It was really great talking to you. In fact, it was a nice conversation. Um, Thank you so much, Miss Lena. us-
you're welcome. मैं हमेशा women को, girls को encourage इसलिए भी करती हूँ because we have a lot to to cross. हमारे पास बैरियर बहुत सारे होते हैं, तो Yes. वो बैरियर्स अगर क्रॉस करके कोई भी आप काम शुरू करते हैं तो you're really really empowered. और सबसे पहला बैरियर तो हमारा शुरू हो जाता है मेंटल बैरियर, और अगर वो लाइक जैसे आपने कहा कि वो हमें अपनी सेल्फ वर्थ पता चल गई, अपने बारे में पता चल गया, सो डेफिनेटली आपने अपने बारे में जान लिया, अपने आप को लाइक महसूस कर लिया कि यू आर द बेस्ट Yes. क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड, आपने कंसिडर कर लिया Exactly. उसमें से, तो देन Yes. नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम Nothing लाइक can stop you. And the other thing, I think this woman, I must say, कि every woman should support another woman. क्योंकि अब हमें एग्जैक्टली उसमें से निकलना चाहिए, जो एक खातून को लेके दूसरी खातून को जो एक जहनों में है, वी शुड कम आउट ऑफ दैट थिंग. अब वक्त बदल गया है. एटलीस्ट वुमेन शुड सपोर्ट एंड एम्पावर टू अदर, just like you and most of the other women who are doing. And I'm also the part of that. Always try कि जी, how I can play my role to support and empower another woman. And this way we बिल्कुल. can create, a difference in the whole world. ये सिर्फ हमारा मसला तो है नहीं, ये तो एक आलमी मसला है कि खातून का जो एम्पावरमेंट है, जो एक आलमी दिन है इनफैक्ट वुमेन का, ये एक आलमी मसला है, तो इस पर हर खातून को काम करना चाहिए. I must say. बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट. बिल्कुल, मैं ये बात मतलब आप सिर्फ पाकिस्तान तक लिमिट नहीं कर सकते, ग्लोबली लोगों के Exactly. इश्यूज हैं. Global और है. लोगों की ड्रेसिंग डिफरेंट हो सकती है, लोगों का लाइक स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, बट behind the scene, या like on the scene, if a woman is there, she's woman, she's a wife, um Exactly. she is a sister, she's a daughter, Sister. and she's Yes. a mother, और She's फिर a mother. सबसे ज्यादा सोसाइटी का एक मेंबर है. और देन उसके अलावा अगर वो लाइक कोई काम करती है तो वर्क प्लेस पे भी उसका एक रोल है. तो मैं कहूंगी वैसे ना कि यहाँ एक चीज ऐड जरूर करना चाहूंगी कि आपने इतना खूबसूरती से उसको मेंशन किया कि एक खातून जो है, एक औरत बहुत सारे रोल, बहुत सारे किरदार निभा रही होती है ना. बस उन सब में कहीं भी खुद को ना भूलें कि यू आर अ मदर, यू आर अ सिस्टर, यू आर अ ब्रदर, यू आर अ डॉटर, यू आर अ लाइक पार्ट ऑफ वाइफ सोसाइटी. था ये. Other than that, you are an individual. Don't forget yourself. That's it. I mean, once you बिफोर don't एंड forget आफ्टर. yourself, yes, then you can do something for yourself and for others at large, for the world. मतलब अपने आप को ही भूल गए तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता ना. लाइक कि नहीं जी, मेरी यही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. अदर देन दैट, society is also your responsibility. What you can do as an individual, as a skilled person for the society. क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट है लीडरशिप का, या आपका जो एक रोल मॉडल यू कैन से, वो किसी जेंडर बायसनेस में नहीं है, बल्कि इट्स ऑल अबाउट द पर्सन वर्थ एंड द स्किल्स द इंडिविजुअल हैज. तो अब वो चीजें ग्लोबली चेंज हो गई हैं, तो अपने आप को फॉर ग्रांटेड ना लीजिए. अपने आप को जो है वो, डोंट फॉरगेट योरसेल्फ, इनफैक्ट आई मस्ट से. Yeah, यस. because this is a women conversation, and आपको पता है कि जब दो औरतों की बात और स्पेशली प्रोडक्टिव बात शुरू हो जाए, तो फिर उसको फुल स्टॉप लगाना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है कि वी कैन एम्पैथाइज, वी सी, वी लुक अराउंड, तो हमें बहुत सारी चीजें नजर आती हैं. तो मुझे आपकी सारी बातों को मतलब मैं एक चीज में समझूंगी कि सम अप करूं, कि जो खाना आप सबके लिए बना के टेबल पे लगाती हैं, उसी टेबल पे बैठ के खाने का हक आपका भी है. तो जब आप खाना सबके लिए लगाती हैं तो आप वहां पे बैठ के उस टेबल पे खाना खाएं, ताकि आपको दुनिया अपने टेबल्स में जगह दे दे. ताकि कोई बात कर सके, कोई लाइक बाकी सबके लिए भी काम कर सके. सो बिल्कुल. स्टार्ट फ्रॉम योर होम, लाइक आप अपने घर में अगर उस टेबल पे नहीं बैठती हैं, तो फिर हम बाहर किसी टेबल पे नहीं बैठ सकेंगे. स्टार्ट लाइक बिल्कुल. ईटिंग विद द फैमिली चैरिटी बिगिंस होम. begins home. So thank you so much, Sanam. It was lovely discussion. Inshallah, हम ये podcast Women Month में sequentially हम इसको अपलोड करेंगे, लोग आपसे सीखेंगे, जानेंगे, स्पेशली women, बच्चियाँ. So I really यस. appreciate your time. Thank you so much for your time and effort. फिर इंशाल्लाह किसी और पॉडकास्ट में किसी और इसी तरह मजबूत औरत के साथ हम मिलेंगे, किसी और मजबूत बच्ची के साथ हम मिलेंगे, और फिर कुछ और भी चीजें जानेंगे. बिल्कुल. टेक वेरी बिल्कुल ठीक है. गुड केयर ऑफ यू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सनम. अपना बहुत सा ख्याल रखें, थैंक यू. बच्चों को मेरे तरफ से प्यार दें, एंड से गुड बाय. अल्लाह थैंक हाफिज. यू. ब्लेस यू. थैंक यू. ब्लेस यू. थैंक यू सो थैंक मच. यू.
अल्लाह